हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल लॉ बकेट में आपका स्वागत है। आज हम लोग एमसीक्यू देखने जा रहे हैं बीएसए के ऑन सेक्शन 7। पहला क्वेश्चन हम लोगों का ये है कि सेक्शन 7 डिक्लेयर्स रेलेवेंट फैक्ट एज दोज विच आर ऑप्शंस necessary to explain or introduce a fact in issue or relevant fact. B. Support or rebut an inference suggested by a fact in issue or relevant fact. C. Establish the identity of anything or person whose identity is relevant. या D. All of the above. तो हम लोग का करेक्ट आंसर होगा all of the above. क्वेश्चन नंबर सेकंड. Under section 7, the fact fixing the dash at which any fact in issue or relevant fact happened are relevant. ऑप्शन है हम लोग का ए मोटिव और इंटेंशन, बी टाइम एंड प्लेस, सी कंडक्ट ऑफ पार्टीज, डी क्रेडिबिलिटी ऑफ विटनेस. तो हम लोग का करेक्ट आंसर है टाइम और प्लेस. क्वेश्चन नंबर 3. सेक्शन 7 मेक्स रेलिवेंट फैक्ट विच शो द रिलेशन ऑफ पार्टीज by whom any such fact was transacted. B. The previous bad character of the accused. C. The financial status of the witnesses. D. Legality of the contracts. तो हम लोग का करेक्ट आंसर होगा द रिलेशन ऑफ पार्टी बाय whom any such fact is transacted. Question number 4. Fact necessary to introduce or explain a fact in issue or relevant fact are option A irrelevant unless corroborated, relevant under section 7, relevant only in criminal cases, relevant only in civil cases. तो हम लोग का जो फैक्ट एक्सप्लेन करने के लिए और इंट्रोड्यूस करने के लिए कोई फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट का वो रेलिवेंट हो जाता है अंडर सेक्शन 7. Question number 5. Section 7 includes fact with support or rebut. Option A. Credibility of witness. B. Inference suggested by fact in issue or a relevant fact. C. Admissibility of document. D. Legality of evidence. तो करेक्ट आंसर होगा इन्फरेंस सजेस्टेड बाय फैक्ट इन इशू और ए रेलेवेंट फैक्ट. Which of the following is not expressly mentioned in section 7? Fact necessary to explain or introduce a fact in issue. ये mentioned है हम लोगों का. Fact showing relation of parties by whom any such fact was transacted. ये भी mentioned है. Fact establishing the identity of anything or person whose identity is relevant. ये भी सही है. Fact proving motive or preparation. Motive और preparation इसमें नहीं दिया हुआ है, सेक्शन 7 में नहीं है. Question number 7. Section 7 provides that facts are relevant in so far as they are necessary for the purpose. The phrase limits admissibility of irrelevant fact, scope of judicial discretion, presumption of fact and burden of proof. तो हम लोग का ये करेक्ट आंसर होगा एडमिसिबिलिटी ऑफ इररिलेवेंट फैक्ट. Illustration. Question is whether a given document is the will of A, the state of A's property and of his family at the date of alleged will may be relevant fact. Question. Which fact is relevant in deciding whether a document is will of A? Question. The handwriting of the neighbor, the state of A's property and the family at the date of the alleged will. यही होगा. फिर भी ऑप्शन देख लेते हैं. जनरल रेपुटेशन ऑफ ए इन सोसाइटी, ये भी नहीं होगा. और द अनरिलेटेड डिस्प्यूट ऑफ ए विथ अदर्स, ये भी नहीं होगा. जो करेक्ट आंसर हम लोगों का बी है. अब हम लोग इसका रीजन देख लेते हैं. तो इसका रीजन ये है कि सेक्शन 7 ऐसे फैक्ट को रेलिवेंट बनाता है जो फैक्ट इन इशू को एक्सप्लेन करे या इंट्रोड्यूस करे. यहाँ पर फैक्ट इन इशू ये है कि क्या ये डॉक्यूमेंट ए का विल है, उस समय ए की प्रॉपर्टी और फैमिली की स्थिति उन सर्कमस्टांसेस की फैमिली परिस्थितियों को एक्सप्लेन करती है और फैक्ट और इशू को इंट्रोड्यूस करती है, इसलिए ये रेलेवेंट है. रीजन हम लोग देख लिए. अब हम लोग का दूसरा क्वेश्चन इलस्ट्रेशन पे है. इलस्ट्रेशन ये है कि ए सूज बी फॉर लिबल इम्प्यूटिंग ए disgraceful conduct to A. B affirms that the matter alleged to be libelous is true. The position and relation of the parties at the time when libel was published may be relevant facts as introductory to the fact in issue. The particulars of a dispute between A and B about a matter unconnected with alleged libel are irrelevant.
though the fact that there was a dispute may be relevant if the affected the relations between A and B. तो हम लोग का अब क्वेश्चन ये है, which fact is relevant in a legal suit between A and B? The financial status of B, the position of the पहला ऑप्शन है the financial status of B, दूसरा ऑप्शन है the position and relation of the parties at the time of publication, the general opinion of the society about A, the particulars of unrelated dispute between A and B. जो करेक्ट आंसर हम लोग का बी होगा, द पोजिशन एंड रिलेशन ऑफ द पार्टीज एट द टाइम ऑफ द पब्लिकेशंस. अब हम लोग इसका रीजन देख लेते हैं. रीजन हम लोग का ये कह रहा है कि सेक्शन 7 के अनुसार अगर कोई फैक्ट इन इशू को इंट्रोड्यूस या एक्सप्लेन करने में मदद करता है तो वो रेलिवेंट हो जाता है. इसलिए लीगल पब्लिश होने के समय पार्टीज की पोजीशन क्या थी और उनके बीच क्या रिलेशंस थे, ये उस समय लीगल के कॉन्टेक्स्ट को समझाते हैं और फैक्ट इन इशू को इंट्रोड्यूस करते हैं. क्वेश्चन नंबर 10. आर पर्टिकुलर्स ऑफ एन अनरिलेटेड डिस्प्यूट बिटवीन ए एंड बी रेलिवेंट? ऑप्शंस यस ऑलवेज रेलिवेंट, ये हमेशा रेलिवेंट होगा. बी नो इररेलेवेंट अनलेस दे इफेक्टेड relations between A and B. C. Relevant only in criminal cases. D. Relevant only if corroborated by witnesses. तो हम लोग का करेक्ट आंसर होगा B. No. Irrelevant unless they affected relations between A and B. तो इन लोग का हम लोग रीजन देख लेते हैं. सेक्शन 7 रेलेवेंसी को केवल उन फैक्ट्स तक सीमित करता है जो फैक्ट इन इशू को एक्सप्लेन करे या इंट्रोड्यूस करने में जरूरी हो. किसी असंबंधित विवाद या डिटेल लेबल को एक्सप्लेन नहीं करता है, इसलिए वो रेलिवेंट नहीं है. लेकिन उस विवाद के कारण पार्टीज के रिलेशन प्रभावित हुए हैं तो ये विवाद का अस्तित्व कंडीशनली रेलिवेंट हो सकता है. इलस्ट्रेशन अब हम लोग थर्ड देखते हैं. ए इज एक्यूज्ड ऑफ ए क्राइम. द फैक्ट दैट सून आफ्टर द कमीशन ऑफ द क्राइम ए absconded from his house is relevant under section 6. A's conduct subsequent to and affected by fact and issue. The fact that at the time when he left home, A had sudden and urgent business at the place to which he went is relevant, tending to explain the fact that he left home suddenly. The details of the business on which he left are not relevant except in so far as they are necessary to show that business was sudden and urgent. तो अब हम लोग का ये ऑप्शंस क्या है? Which fact explains A's sudden departure after the crime? तो पहला that the A had sudden and urgent business at the place which he went. तो ये ऑप्शन तो पहला ही है, फिर भी दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं. that A's neighbor had disliked him, ये नहीं होगा. that A's family was wealthy, ये भी नहीं होगा. that A has previously traveled abroad, ये भी नहीं होगा. अब हम लोग इसका रीजन देख लेते हैं. सेक्शन 7 ऐसे फैक्ट को रेलिवेंट बनाता है जो फैक्ट इन इशू से जुड़े कंडक्ट को एक्सप्लेन करता हो. एक अचानक चले जाना फैक्ट इन इशू है. ए का अर्जेंट बिजनेस उसके अचानक जाने का कारण बताता है और फैक्ट इन इशू को इंट्रोड्यूस करता है, इसलिए वो रेलेवेंट है. क्वेश्चन नंबर 12. आर द डिटेल्स ऑफ द बिजनेस रेलिवेंट? पहला ऑप्शन रेलिवेंट इन ऑल केसेस, दूसरा ऑप्शन इररेलेवेंट एक्सेप्ट टू शो दैट बिजनेस वाज सडन एंड अर्जेंट, और फिर रेलिवेंट ओनली इन सिविल केसेस, और फिर रेलिवेंट ओनली इफ कॉरोबरेटेड बाय डॉक्यूमेंट्स. तो हम लोग का जो आंसर होगा इररेलेवेंट होगा एक्सेप्ट टू शो दैट द बिजनेस वाज सडन एंड अर्जेंट. तो अब इसका हम लोग रीजन देख लेते हैं. इसका रीजन ये है कि सेक्शन 7 रेलेवेंसी को नेसेसिटी तक ही सीमित करता है. बिजनेस की डिटेल्स रेलेवेंट नहीं है जब तक कि वो ये साबित ना करते बिजनेस अचानक और अर्जेंट था. यदि वो ऐसा साबित करता है तो ए के कंडक्ट को एक्सप्लेन करता है और रेलेवेंट हो जाता है ये. Question. A sues B for inducing C to break a contract of service made by him with A. C on leaving A's service says to A, I am leaving you because B has made me a better offer.
दिस स्टेटमेंट इज रेलिवेंट फैक्ट एज एक्सप्लेनेटरीज ऑफ सी कंडक्ट विच इज रेलिवेंट एज ए फैक्ट इन इशू। इज सीज स्टेटमेंट अबाउट लिविंग एज सर्विस रेलिवेंट? पहला ऑप्शन है कि ये इरेलीवेंट हियर से है। दूसरा, रेलिवेंट एज एक्सप्लेनेटरीज ऑफ सीज कंडक्ट, ठीक है। सी, रेलिवेंट ओनली इफ कोरोबोरेटेड बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। डी, नॉट एडमिसेबल अंडर सेक्शन 7। तो हम लोग का करेक्ट आंसर होगा रेलिवेंट एज एक्सप्लेनेटरीज ऑफ सीज कंडक्ट। तो इसका रीजन क्या है? सेक्शन 7, जो सेक्शन 7 है, ऐसे फैक्ट को रेलिवेंट बनाता है जो फैक्ट इन जो किसी फैक्ट इन इशू से जुड़े कंडक्ट को एक्सप्लेन करता हो। सी का स्टेटमेंट कि उसने ए की सर्विस छोड़ने के लिए कंडक्ट को एक्सप्लेन करता है, क्योंकि ये कंडक्ट सीधे फैक्ट इन इशू यानी इंड्यूसमेंट टू ब्रेक कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये रेलिवेंट है। क्वेश्चन, ए इज अक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट, is seen to give the stolen property to B, who is seen to give it to A's wife. B says as he delivers it, A says you are to hide this. B's statement is relevant as explanatory of a fact which is a part of transaction. Is B's statement A says you are to hide this relevant? Option है हम लोग का irrelevant as it is not made by A, relevant as explanations of fact which is a part of transaction, relevant only if B is examined as a witness, D, not relevant under this अधिनियम। तो हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा B, relevant as explanatory of a fact which is a part of transaction। इसका रीजन क्या है? सेक्शन 7 ऐसे फैक्ट को रेलिवेंट बनाता है जो किसी फैक्ट इन इशू को एक्सप्लेन करे या इंट्रोड्यूस करे। बी का स्टेटमेंट चोरी की प्रॉपर्टी को डिलीवरी के कार्य को एक्सप्लेन करता है, क्योंकि ये पूरा ट्रांजैक्शन का हिस्सा है, इसलिए बी का स्टेटमेंट रेलिवेंट है। इलस्ट्रेशन, ए इज ट्राइड फॉर अ राइट एंड इट इज प्रूव्ड to have marched at the head of the mob. The cries of the mob are relevant as explanatory of the nature of the transaction. क्वेश्चन ये है, आर द क्राइज ऑफ द मॉब रेलिवेंट इन अ राइट केस? तो पहला ऑप्शन है इरेलीवेंट, बी ऑप्शन है रेलिवेंट एज एक्सप्लेनेटरी ऑफ नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, सी रेलिवेंट ओनली इफ रिकॉर्डेड इन राइटिंग, डी रेलिवेंट ओनली इन सिविल सूट्स। तो हम लोग का करेक्ट आंसर है रेलिवेंट एज एक्सप्लेनेटरी ऑफ नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। तुम लोग इसका रीजन देखते हैं। सेक्शन 7 ऐसे फैक्ट्स को रेलिवेंट बनाता है जो किसी ट्रांजैक्शन की नेचर को एक्सप्लेन करता हो। भीड़ के नारे और चिल्लाहट उस राइट के कैरेक्टर नेचर को एक्सप्लेन करता है और फैक्ट इन इशू को इंट्रोड्यूस करता है, इसलिए वो रेलिवेंट है। आइए अब हम लोग सेक्शन 8 देख लेते हैं। सेक्शन 8 को हम लोग किसी और वीडियो में देखेंगे, हम लोग यहाँ पे सेक्शन 7 तक ही रखते हैं। तो थैंक यू गाइस वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेक्शन 8 की एमसीक्यू करेंगे।